Assalamu alaikum, everybody. Welcome to PSLnama. This is the review show for all PSL games that are happening right now, every day in the Pakistan Super League. I have with me, I'm your host, by the way, Waqas Ahmed, and I have with me Shoaib, Hassan, and Sahfqat. And to the six people that are actually watching this, welcome aboard. This is going to be fun. तो आज जो है पेशावर सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर का मैच था and the match was pretty one-sided. And I mean, we'll get to the match, but firstly, जो चार रैंडम लोग अब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो बॉयज जल्दी जल्दी अपना इंट्रो करा दो, कौन कौन हो आप. I am a content creator, by the way, and the people who know me from Twitter. So I have with me Shoaib, Hassan, and Shavkat. So Shoaib, आपकी टीम हारी है, तो I'll you do the honors. My name is Sohaib Chatri, or I am an engineer by education and a businessman by profession. Cricket, probably following it for last 24 to 25 years. It's kind of interesting. शोएब माइक थोड़ा ऊपर कर लो आवाज. Sorry, I forgot. So I've been following cricket for probably 24, 25 years now, and Quetta Gladiators for 8 years now. Rough night, rough year, rough. Rough couple of years, by the way. नहीं 4 years भाई 4 साल से हो रहे हैं and जो है ना वो चीजें बेहतर नहीं हो रही हैं, so it's one of those nights again. So yeah, that's how it is. Right. I'll circle back to you introductions के बाद because Sure. obviously. So I also have Hassan bhai with me who lives in Islamabad as far as I know. I mean, so Ranjit Lal ka hai or you picked something else. Right. So, yeah, Hassan Saeed, thank you, Waqas, for the introduction. And same as Sohaib, I've been following the sport for about 25 years as well. And historically, I've been supporting Islamabad United, obviously, since I'm in Islamabad. But not just that, थोड़ा सा modern day approach भी लेते हैं, data centric भी हैं. I'm a big fan of data analytics when it comes to sports. But is the I'm slightly confused because two of my favorite players are playing for Prashar Zalmi. Two of the new upcomers जो top 3 में bat कर रहे हैं, Mohammad Haris and Sam Ayub. So it'll be interesting because there's a Islamabad United versus Prashar Zalmi match coming up. So I don't know मुझे तब पता चलेगा मैं actually किसको support कर रहा हूँ. But since inception of PSL, obviously रंग जीत का लाल ही है. Oh, So yeah. okay. Beautiful. और शफकत, so congratulations are in order क्योंकि आपकी टीम आज जीती है लाहौर कलंदर्स. So how are you feeling, by the way? Absolutely brilliant because it's always great to get a win after a gut-wrenching loss. I mean, against our rivals, Karachi. So, I mean, it's very good to be back on the winning terms. As far as my introduction is concerned, I'm Sahfqat Shabbir, and I guess I'm the youngest in this panel. Shafqat, Mike. Yeah, I guess I'm the youngest in this panel, and I've been following cricket for like last 12, 13 years. I have tried playing cricket myself as well, but I failed to do so. So I took up cricket as a profession. I talk about cricket, I watch cricket, and I get paid for doing that. I think that's pretty much it. अच्छा, funnily enough कि जो हम में से सबसे छोटा है, he is the most qualified to speak on cricket because he actually covers the game professionally. So firstly, congratulations, Shafqat, आपकी टीम जीती आज. I'm going to come back to Shoaib because you know जैसे आपने कहा 4 साल से जो है वो चल रहा है हिसाब किताब बुरा. So I mean, okay, for Quetta Gladiators, jokes aside, what is the one thing that, like, I mean, obviously there are a lot of things, but what is the one thing which you think कि अगर ये लोग कर लें तो they're gonna get some momentum going? Yeah, I cannot. I'm sorry. I cannot pinpoint a single thing because there's a lot of wrong that is happening right now. First and foremost, आज भी जो नजर आया पिछले मैच के बाद, I was hoping कि there would be some changes made. And कुछ जगह आप कह सकते हो कि यार आपके साथ लग काम नहीं कर रहे, you rope in players वो चले नहीं. For example, like on paper आप जब भी ड्राफ्ट के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम देखोगे
आप बोलते यार this is one of the best sides and this should do well. Like last year probably they had Chris Gayle and Tom Benton roped in to open the innings, पर नहीं चल पाए. फिर आई थिंक टॉम बैंटन इंजर्ड हो गया था. क्रिस गेल तो प्रॉब्ली 4 दफा पीएसएल खेला है, चारों दफा कुछ नहीं किया. So you see things apart from luck too, पर there are things जो कि सामने हैं, आपको नजर आता है जो कि बेहतर हो सकती हैं. लाइक विल स्मिथ, अभी आप देखो ना, विल स्मिथ नॉट प्लेइंग, ये एक अजीब सा डिसीजन जो आपको समझ नहीं आता. एंड मार्टिन गप्टिल प्लेइंग ओवर हिम, एंड लाइक अब मार्टिन गप्टिल एंड नाउ जेसन रॉय एज वेल दोनों खेलेंगे, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव एटलीस्ट वन इनिंग्स ऑफ देयर क्रेडिट. एंड इसका मतलब ये है यू विल हैव टू वेट फॉर विल स्मिथ कि कब उसको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा. एंड देन देयर हैव बीन, आई थिंक ड्राफ्ट्स में जब आप टीम देख, पूरा एक स्क्वाड देखते हो ना, तो आपको लगता है यार स्क्वाड बहुत स्ट्रांग है. लेकिन जब आप 11 बनाने बैठते हो ना, तो आपको लगता है कि यार इसमें गड़बड़ है. सबसे बड़ी गड़बड़ आती है आई थिंक फॉर मी इन ड्राफ्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज द इमर्जिंग कैटेगरी. बिकॉज आप किसी को भी बिठा सकते हो, बट इन दी एंड आपको इमर्जिंग को खिलाना ही खिलाना है. सो व्हेन यू गोइंग एज अ, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स की आप मैनेजमेंट अगर आप हो, अगर आप एमल और पंगल से को पिक कर रहे हो, और जब आप उस टीम को जब आप स्क्वाड देखते हैं, आप बोलते हैं यार इसमें तो हसनैन भी है, इसमें नसीम है, देव कर्नल जाहिद, देव उमैद, देव एमल, देव सो मेनी फास्ट बॉलर्स, नवीन वाज देयर एज वेल. और जब आप टीम बनाने बैठोगे तो आप देखोगे कि यार हसनैन और नसीम तो खेलेंगे, सही है. एंड देन प्रॉब्ली नवीन को रिटेन किया तो नवीन भी खेलेगा, दैट मींस एमल नहीं खेलेगा, बिकॉज अगर एमल खेलेगा तो यू हैव अ वेरी लेंदी टेल. इसका मतलब है पंगल जई खेलेगा. अगर पंगल जई खेलेगा देन यू हैव सरफराज इन द सेम टीम. दे हैव take time to settle. Both of them have a similar role, जो flamboyance नहीं है दोनों में. Then you have openers जो time ले रहे हैं. मतलब there's a lot of wrong going on. There's so much wrong that is going on. And I mean, Do you there's a lot think of they things. messed it up? They messed it up in the drafts because I mean, if you circle back to the drafts, ये जो क्योंकि okay, I'll make it very simple. Playing strategy, obviously, we all know कि playing strategy होती है वो direct करती है कि draft में आप क्या करोगे. Because you can't just go in a draft and say, अच्छा ये जो है 18 best players हैं, आप इनको ले लो. You have to have some, जैसे कहते हैं ना, foresight कि मैं playing 11 कैसे बनाऊंगा, उसके बाद मैं ड्राफ्ट करता हूँ. तो डू यू थिंक कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स पिछले 4 साल से ये गलती कर रही है कि दे गो इन द ड्राफ्ट हैविंग द आइडिया कि हम ये प्लेयर मतलब पकड़ लेंगे, और उसके बाद जब वो 11 बनाने जाते हैं तो दे लाइक हिट अ बॉल. अच्छा, इसमें होता ये है, इसमें देखो ना, यहाँ थोड़ी सी मैं लक को ब्लेम करूंगा. सी, कहने को ये है कि व्हेन यू लुक एट अ टीम, मैंने एक प्लेयर अवेलेबल नहीं है तो आप बोलते हैं यार एक प्लेयर से कुछ नहीं होता. मतलब होता है, लेकिन फिर भी आप ये बोलोगे कि यार एक प्लेयर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. जैसे हसरंगा का इशू अभी आया. ठीक, हसर आप अब आज का मैच छोड़ दो ना, आज का मैच तो बहुत बुरा था. पिछला कल का मैच लगा लो, वेयर यू हैड टाइड देम अप, जहां आपने एक मीडियोकर टोटल को फाइटिंग बना दिया था. तो जो ओवर्स कैस ने किए वो ओवर्स हसरंगा करता, सही है. एंड आप कोई भी मैच इस तरह नहीं निकाल, दो बॉलर पे आप मैच नहीं निकाल सकते. हसनैन और नसीम हैव बीन डूइंग रियली वेल, पर नवाज की परफॉर्मेंस जब से पीएसएल पाकिस्तान वापस आई है हैजंट बीन द सेम. उसका इकोनॉमी सेम नहीं है. आई मीन वी रिमेंबर नवाज बीइंग द बॉलर हु कुड बॉल इन एनी फेस. आई मीन वो पावर प्ले में भी बॉल कर लेता है, मिडिल में भी, और उसने डेथ में भी जो है वो मैचेस निकाले. एंड देयर वाज अ मैच जहाँ उसने 4 ओवर 4 रन पे कर दिए थे, सही. एंड since the PSL has come back to Pakistan, he has gone for the economy over 8.5, if I'm not wrong. He has gone for runs. So Nawaz, who was the leading bowler for them, he hasn't been performing. So you can't win matches with two bowlers. हसरंगा के होते हुए ये होता है कि हसरंगा इज नॉट जस्ट अ ग्रेट बॉलर, पर हसरंगा अगर होता है तो फिर आप जो कैस है, कैस इज अ बॉलर, ही इज नॉट अ बैट्समैन. अगर कैस खेलता है तो इसका मतलब है आपको एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाना पड़ता है जो बंगल सही है. अगर हसरंगा आता है तो हसरंगा 8 पे बैट करता है, सीधा सीधा एमल टीम में आता है, तो आपके पास टेल जो है हसनैन नसीम और एमल की हो जाती है. तो दे आर फैक्टर्स इन, जो छोटी छोटी डिसीजन की वजह से जो है, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फैक्टर ना करके जो है ना वो उस पर इफेक्ट आ जाता है. बट आई थिंक टैक्टिकली दे हैव बीन रियली पुअर. बैकरूम प्लानिंग भी एंड ऑन फील्ड भी. ऑन फील्ड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहां मैं बोलूंगा फर्स्ट हाफ ऑफ यस्टरडेज मैच वाज प्रीटी गुड, जहां आप 4 विकेट निकाली तो उसमें कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद कैप्टनसी अच्छी नहीं थी.
कराची किंग्स वाले मैच में आई थिंक सरफराज वाज ऑन पॉइंट, बहुत अच्छी कैप्टनसी थी, लेकिन कल वाले मैच में एंड आज वाले मैच में आई थिंक लाहौर वाज लाहौर वर फिनोमिनल. मतलब if you look at what they've done today, like हर प्लेयर का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 200 है. प्रॉब्ली मिर्जा ताहिर का स्ट्राइक रेट पूर्ण नहीं होगा तो 150 अबव होगा उसका. सो ऑल प्लेयर्स वेंट आउट एंड प्लेड देयर पार्ट, एंड किसी ने भी 50 नहीं करी आज, येट दे स्कोर्ड 198. एंड बॉलिंग तो उनकी ऑब्वियसली मतलब दिस it's the best bowling Okay, so out there. I'm looking at the Qalandars scorecard right now. I mean, Mirza scored 31 of 15. Fakhr is 22 of 14. Kamran Ghulam 21 of 17. Shai Hope 47 of 32. Hussain Talat 26 of 13. इसका सबसे मिडिल ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट इसका है, 200 का स्ट्राइक रेट है. तो और उसके बाद सिकंदर रजा 32 ऑफ 16, ऑल्सो 200 का स्ट्राइक रेट. तो या आई मीन लाइक हर बंदे ने ही मतलब उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड किया है. शे होप आके मार रहा है जिस मैच पे, उस मैच के बारे में आप क्या कह सकते हो? राइट राइट. He अच्छा. he played phenomenal. Shea Hope ने भी बहुत अच्छा खेला and they Yeah, finished I mean, this is the ideal T20 batting card कि कोई 50 नहीं करे, but everybody scores like 170 or above के strike rate पे. अच्छा, I'm gonna come to Hassan भाई because अब obviously कोयटा फैन से अगर पूछेंगे कि कोयटा में क्या खराबी है तो बड़ा ही एक जो है ऐसा आंसर मिलता है कि बंदा कहता है यार क़यामत आने वाली है और जो है अब कोई चीज नहीं बची है. तो मैं एक थर्ड पर्सपेक्टिव लेना चाहता हूँ कि फ्रॉम एन इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है आप लोग बहुत डेटा ज्यादा यूज करते हैं और जो है आप लोग समझते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स से क्रिकेट खेली जाती है, इस तरह की चीजें लाते हैं आप लोग. तो आप मुझे बताएं कि कोयटा, व्हाट कैन कोयटा डू फ्रॉम लाइक अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइक शुड दे बिकम मोर डेटा सेंट्रिक, शुड दे बी मोर factual about things? What is it that they're lacking? Yeah, so I think on the upside, and Sohaib touched upon it as well, Naseem Shah and Hasnain, jo hai na, especially Hasnain, he's been a surprise package so far this PSL. And to do what he's doing with the remodel action, not to forget, I think there should be some credit given to Umar Gul. वो आया तो एकदम से कुछ नजर आया कि चेंजेस हसनैन में विद द न्यू बॉल एंड द ओल्ड बॉल. आई थिंक द मैच दे प्लेड लास्ट नाइट वाज फिनोमिनल. वो खत्म हो गया था मैच एंड दे मेड अ मैच आउट ऑफ इट. नसीम एंड हसनैन. Naseem is still a little bit hot and cold, but Hasnan seems to be on point, and I think pretty soon he'll be closing in on Ihsanullah for the top wickets in the tournament. Abhi Ihsanullah is leading the charts over there. As far as Carry on, sir. Carry on. that is where the good side ends. I think 8 overs of pure class hain abhi Quetta ke paas, and then after that Nawaz has always been their trump card, and Nawaz is actually a big worry for me because I'm a big advocate of Nawaz. I mean, one of the 2 matches we won this decade versus India was thanks to वो Nawaz. नवाज है जो पाए, बेसिकली नवाज है जो पाए थे यार. और वो बैटिंग में भी नहीं चल रहा और बॉलिंग में भी नहीं चल रहा. एंड at the cusp of it, Imad Wasim seems to have found his mojo. Suddenly 3 विकेट भी उसने अपफ्रंट ले ली अपने एक स्पेल में और 80 भी मार दिया ओपनिंग मैच में यार. यार मैं एक बात बताऊं, मैंने इमाद को टूर्नामेंट से पहले इतना उड़ाया था सोशल मीडिया पे, खासतौर पर ट्विटर पे इतना उड़ाया था. आई मीन लाइक ऑब्वियसली जो भी हालात चल रहे, राइट. और उसके बाद वो आके जो है रन बना रहा है, विकेटें ले रहा है, और मुझे खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, अजीब मेरी कोई मिक्स फीलिंग चल रही है. और तो which is good actually. Professionalism में ये होना चाहिए यार. अगर ये अगर एथलीट अपनी फिटनेस अच्छी कर ले ना, ही इज अ प्रॉपर एसेट, क्योंकि उसके पास बड़ा ही थिंकिंग क्रिकेटिंग ब्रेन है जो कि पाकिस्तान के बहुत एथलीट्स लैक करते हैं. बड़ी एक कैंडिडेट सी बात है, इट्स नॉट कोई ढकी छुपी बात नहीं है. इवन बाबर हैज दिस प्रॉब्लम वेयर ही like when it comes to strategic implementation of cricketing plans, Babar is, I would say, lacking, a bit lacking. मतलब not के आता ही नहीं उसको कुछ, लेकिन थोड़ा lacking है. इमाद थोड़ा shrewd है. ये मसला है कि ये जो नवाज है ना, I remember at one point we in our group, in our circle, were almost mizaq में, but comparing him to Miller. तो अभी he does not seem to be anywhere close to Miller. और उससे अभी भी आया था बैटिंग करने, and he was struggling to middle the ball, and it's been 3 matches in a row now. And then with the ball in hand, he's supposed to be your premium left arm spin bowler.
नहीं हो रहा उससे. So he needs to come good, not just for Quetta, for our future plans as well. And I think batting में ना where Quetta is found wanting. आप देखें last match में भी Gupta when he scored that century, phenomenal century by the way. That was class. Beautiful innings. I think it was one of the best because difficult conditions में उसने पहले consolidate किया and then he accelerated and then. But despite that century and one of the top scorers in PSL, 150 odd किया था Quetta ने. I was expecting more of Iftimania, to be honest. I think he's done okay in patches as well. आज भी he 200 towards I think long on. But I think as the match progresses ना थोड़ा सा इनको अपने number 2 और number 3 पे कुछ focus करना पड़ेगा कि यहाँ पे what is the role that they're looking at. I think वहाँ पे आके सरफराज भी थोड़ा सा floater का role खेल रहा है, but then he's not as aggressive as he should be in such situations. मैंने अभी तक जो PSL का template देखा है ना वो ये है कि the team that is chasing now after the first 10 overs they allow the run rate to get to 12 and then they take from there और वो शुरू के matches close हुए हैं and then बीच में player slip ups हुए हैं and then आज भी एक player slip up हुआ है. I think if any team, not just Quetta, they need to address that upfront. थोड़ा सा front loading पे काम करने की ज़रूरत है, but that is just my 2 cents in hindsight of what went wrong today. Achha, Shavkat, I'm going to give you like the next 3 minutes to just say praises for Lahore Qalandars. So, Shoaib, तुम अपने काम बंद कर लो अभी. So, like, amazing win. Where do you think the match was won? Batting card, तो obviously है, but bowling भी आज बहुत जबरदस्त हुई. So, yeah, thoughts. Exactly. You see, what's the thing that has actually? I think. Okay. Mike. Yeah, sure. You see, there is just one thing about Qalandars is that they kind of come up with spirit when the chips are down. And in the last game, we saw that Qalandars just couldn't come full circle against the Karachi Kings. And in the post-match, the talk in which the coaches and I guess Shaheen was also mentioning this कि हम अपनी बैटिंग को टेस्ट कर रहे थे, इसलिए मैंने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की कराची के अगेंस्ट. तो आई मीन उस चीज को माइंड में रखते हुए दे वर ब्रेव इनफ कि उन्होंने आज कुछ कॉल्स ऐसे ली कि देयर वाज क्रिटिसिज्म अगेंस्ट कामरान गुलाम, अगेंस्ट शाहोब, अगेंस्ट देयर मिडिल ऑर्डर. तो आई थिंक इट वाज अ डायरेक्शन फ्रॉम द टीम मैनेजमेंट एज वेल कि यू हैव टू जस्ट गो इन देयर एंड यू हैव टू प्ले योर शॉट्स, जो कि हमने देखा व्हेन शाहोब वॉकड इन, व्हेन कामरान गुलाम आल्सो ट्राइड दैट. और अगर नहीं हो रहा था तो दे वर हिटिंग द शॉट्स एंड दे वर लीविंग, राइट. और उसमें जैसे आपने पहले स्कोर कार्ड की तरफ देखा और पढ़ा कि एवरीबॉडी वाज स्कोरिंग अराउंड 200 स्ट्राइक रेट एंड दैट इज व्हाई दे रीच्ड 199. दैट वाज वन पॉइंट. अच्छा, उसमें एक चीज ये भी है कि ठीक है, Qalandars were struggling with the bat in the last game. They were desperate to do well today, but to their good luck, they were playing against Quetta. अगर I would say कि अगर आज कोई और टीम होती क्वेटा की जगह पे तो वो शायद Qalandars जिस तरह से आके अटैक करने की कोशिश कर रहे थे एंड दे वर ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, शायद वो उनको कोई स्ट्रेंगल होल्ड हो जाता. लेकिन क्वेटा के अंदर 3 वीक लिंक्स हैं, ऑडियन स्मिथ, मोहम्मद नवाज एंड केएस अहमद. आज भी उन्होंने लास्ट गेम में भी क्वेटा कुड हैव वन अगेंस्ट जालमी, वहां पे भी उन्होंने रन्स दिए बहुत सारे और आज फिर उन्होंने रन्स दिए. आई वाज लुकिंग एट ऑडियन स्मिथ्स करियर इकोनॉमी and that career economy is out of a career where he has bowled around 1200 balls. 1200 balls करने के बाद भी वो बंदा 9.6 runs in over खाता है. और 1200 बॉलें जो हैं, 1200 बॉलें means 200 ओवर, राइट? हाँ, 200 ओवर. Which translates to 50 game. Almost. Yeah, exactly. 50 T20s का एक्सपीरियंस है उसके पास, राइट? More than 70, I guess, if I'm not wrong. तो आई मीन आप एक चीज को देख रहे हैं और फिर वो 4 ओवर्स पूरे करवा रहा है. तो उसमें एक मीम भी चल रही थी ऑडियंस स्मिथ के ऊपर के वो जब प्लेयर्स के स्टैट्स आते हैं, आई गेस वेस्ट इंडीज से थी, जब वेस्ट इंडीज के लिए वो खेल रहा था, वो प्लेयर्स के बारे में बताते हैं वीक जोन और स्ट्रॉन्ग जोन. तो ऑडियंस स्मिथ का वीक जोन में लिखा हुआ था कि एक्सपेंसिव इन ऑल फेजेस. तो ही हैज लिटरली प्रूव्ड दैट. हालांकि इस लेवल पे हम लोग देख रहे होते हैं
कि कुछ अनोमली हो जाती है, कभी प्लेयर्स को लग जाते हैं 50 रन 4 ओवर में, लेकिन आज मेरी बिल्कुल नजर उसके ऊपर थी कि ये क्या करता है अपने पहले 2 3 4 ओवर्स में। उसने अपने पहले 2 ओवर्स में 20 रन किए। अच्छा खैर, कमिंग टुवर्ड्स क्वेटा's अदर बॉलर्स, उसमें एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हसनैन या नसीम में से किसी को रन्स लगेंगे, तो आपके पास जो दूसरे बॉलर्स हैं उनको स्टैंड अप करना चाहिए। तो आज नसीम को रन्स लगे, हसनैन वाज द बेस्ट ऑफ द लॉट फॉर क्वेटा टुडे एज यूजुअल, जैसे पिछले मैच में, बट देयर वाज नोबडी हु कुड स्टैंड अप एंड स्टॉप द कलंदर्स रन फ्लो, तो वो नहीं हो सका। उसके बाद एक बात ये कि क्वेटा हैव बीन रियली कंफ्यूज्ड अबाउट देयर बैटिंग अप्रोच। मतलब मैं अभी देख रहा था, द स्किपर सरफराज अहमद, उसने 4 मैचेस में 4 डिफरेंट पोजीशंस पे बैटिंग की है। I mean, that's not what you expect from your captain. This is the man like who's been leading Pakistan team in T20 internationals as well. And I think he's using himself as a low value wicket, जो उसको नवाज से करवाना चाहिए ना, वो खुद ट्राई बट यार एक मिनट यहाँ पे, सॉरी कंटिन्यू, सॉरी टू कट यू ऑफ, गो अहेड। you can add. I think you should add your point. यार मेरा जो पॉइंट ये है ना, मेरा पॉइंट ये है कि हसान भाई ने भी कहा वो लो वैल्यू विकेट यूज कर रहा है अपने आप को, ठीक है, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द लो वैल्यू विकेट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका मैचअप हो। मैंने क्वेटा को मैचअप नहीं लगाते हुए देखा है किसी पॉइंट पे भी। वो स्पिनर पे इफ्तिखार को भेज देते हैं, फास्ट बॉलर पे सरफराज आ रहा होता है, तो ये एक बड़ी बेसिक एरर है मैचअप्स की। आई मीन लाइक जो नाजरीन यहाँ देख रहे हैं जो मैचअप्स नहीं जानते, मैचअप्स बेसिकली होता है कि आपका किस अपोनेंट, किस टाइप ऑफ बॉलर या किस टाइप ऑफ प्लेयर के खिलाफ ज्यादा फेवरेबल चांस है कि आप उस पर रन कर सको। तो ये आजकल क्रिकेट की दुनिया में बहुत एक बड़ी ही जिसे कहते हैं नॉर्मल सी चीज है कि मैचअप देख के आप अपना बैटिंग ऑर्डर करते हो। तो आई थिंक इसमें बहुत बड़ा versus Rashid Khan at the middle of his spell, Rashid Khan के against इफ्तिखार को मेरा ख्याल है आज नहीं भेजनी थी. That was also a turning point in the match, and then also he got Roy out and Jason Roy was doing really well. मेरा ख्याल है, but the elephant in the room थोड़ा सा कलंदर्स की साइड पे भी अगर देखें ना, तो उनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना, पोस्ट फखर जमान, कामरान गुलाम, शेर होप एंड हुसैन तलत, I don't see this as a tournament winning middle order. With due respect, Sahfqat, I know you being a Qalandari fan, but by the way, I'm not that hardcore. By the way, I'm not that hardcore fan. I can be harsh on Qalandars as well. यार ये शफकत तुमने तो अभी से जो है हथियार डाल दिए, ये क्या है? नहीं, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो। You know, over the 8 seasons of PSL, I have learned this thing कि यार इसकी ट्विटर फीड जाके देखो, हर चौके पे, हर छक्के पे अभी यहाँ पे कह रहा है मैं फैन नहीं, really फैन हूं मैं, लेकिन you know what, we are like, हम जो बड़े हुए हैं पिछले 10-15 सालों में, जो हमने देखी है क्रिकेट सारी, और मतलब लाहौर कलंदर्स तो 2016 ऑनवर्ड्स आए ना, हमारी जो एक जेनेटिक्स है वो हार्डकोर हो चुकी है इस तरह में। अगर आपकी टीम जो है वो मैचेस बॉच कर रही है, अब हार रही है, एकदम जीता हुआ टूर्नामेंट से बाहर जा रही है, तो आई थिंक वी बीन उस चीज के हम काफी सारे सीख चुके हैं कि यार हाउ टू डील विद दैट। और कलंदर्स के साथ भी यही सीख है, लाइक आई मीन देयर आर गोइंग टू बी थिंग्स, तो जहां पे चीजें गलत होने लगती हैं, ऑफ कोर्स इट हर्ट्स एज अ फैन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश कि कहां पे उन्होंने गलत क्रिकेट खेली। By the way, what happened to Haris Rauf today, Sahfqat? Haris Rauf यार उसने 3 छक्के खाए उससे पहले रॉय से, वो उसके हफीज से 2 छक्के। यार कम ऑन, मैं is out bowling him right now. शॉट्स थे वो, फ्रीकिश शॉट्स अच्छा थे। हाँ बोलो आप बोलो। हाँ, आई थिंक वो हारिस रऊफ थोड़ा जब स्पेल अपना स्टार्ट करता है, तो उसमें ये कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा होता है कि वो थोड़ा लूजन अप हो रहा होता है, या जैसे उसने एक शॉर्ट बॉल की तो रॉय पहले रेडी था, उसने उठा के he cannot figure out his length. He seems to be bowling too short of a good length. जो pick up shot हफीज ने 2 उसको मारी ना, they were identical. He didn't learn from his first छक्का। मेरा ख्याल है ज़मान खान यार एक मैं, अच्छा आप तीनों से मैं एक सवाल पूछूं मजे का, among all the fast bowlers जिन्होंने आज खेला है, who do you think has the best economy rate, right? बगैर स्कोर कार्ड देके बताओ मुझे कौन सा बॉलर फॉर दिस। डेविड वीजा। हाँ डेविड वीजा, तो एग्जैक्टली अब क्या है हाँ, अब
अब हारिस एक एंड से देख रहा है, वीजा को नहीं पड़ रहे रन, राइट? तो आप उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। आप देख रहे हो कि वीजा जो है वो कटर मार रहा है, पिच के अंदर ग्रिप हो रहा है, बॉल स्लोअर वन करा रहा है, तो शाहीन आप did that. प्लेस शाहीन ने अपना प्लान फेयरली क्विकली चेंज किया जब उसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इनिंग नजर आया ना कि कटर्स इज द वे टू गो, तो उसने कटर्स कराए, कटर्स पे उसको छक्का भी पड़ा एंड में आके, फुल टॉस हो गई थी, बट ही डिड switch his plans. Haris Rauf still didn't do that. It's good to see Zaman Khan trying new things. I think उसके पास काफी variety है यार for an emerging captain. यार मुझे जमान की जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि इफ यू एक्चुअली, अगर आप कोई, बिकॉज फजल महमूद जो है हमारे फर्स्ट एवर सुपरस्टार, उन्होंने एक फर्मा दिया है, एक फ्रेमवर्क दिया है कि व्हाट हाउ फास्ट बॉलर सपोज टू बी। ही शुड बी टॉल, ही शुड बी ब्रॉड, उसके बड़े हाथ होने चाहिए ताकि बॉल ग्रिप अच्छी हो। ये बड़ा ही एक जेनेरिक सा एक टोटका है जो पाकिस्तान क्रिकेट में चलते हुए आ रहा है। एंड लाइक कोचेज एंड ऑल दीज प्लेयर्स एक्चुअली से के यही फ्रेमवर्क पे लेके हम फास्ट बॉलर तैयार करते हैं। जमान इज कम्प्लीटली ऑपोजिट ऑफ ऑल ऑफ दैट। ही इज शॉर्ट, ही इज नॉट दैट टॉल, ही इज स्लिंगी, हाई आर्म नहीं है, हाथ उसके हमारी नॉर्मल लोगों की तरह है, राइट? बट द बाउंस दैट ही गेट्स फ्रॉम डेड पिचेस, लाइक कराची और मुल्तान की पिचेस पे वो स्लिंगी एक्शन पे जो है बॉल इस तरह पता नहीं किस तरह कराता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आई, लेकिन उसकी ये ना बाउंस एक बात मिलिंगा के ऊपर काफी क्लीशे बन चुकी थी कि ही रिलीजेस द बॉल फ्रॉम आउटसाइड अंपायर्स राइट पॉकेट, मतलब अंपायर मिडिल में खड़ा होता है, हाथ उसके राइट पॉकेट के आगे से रिलीज हो रहा होता है, एंड दे वर शोइंग द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर जमान खान इन द प्रीवियस मैच। उसका रिलीज पॉइंट भी अंपायर अगर इफ ही इज कमिंग अराउंड द विकेट तो उसके राइट शोल्डर के ऊपर से आ रहा था। सो इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सोहेब से, बीइंग अ फैन ऑफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स, डू दे नॉट हैव कर्नल जाहिद इन देयर रैंक्स? They do, पर यही प्रॉब्लम आती है ना कि यू हैव कर्नल जाहिद, बट हु डू यू प्ले फॉर हिम फॉर? किसको बैठाओगे? अगर थर्ड फास्ट बॉलर आपने खिलाना हो, डू यू थिंक उसका केस हाँ बन सकता श्योर है? आता है। अच्छा उसमें चक्कर क्या आता है, व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि इफ यू आर गोइंग फॉर एमल और कर्नल जाहिद, बोथ ऑफ देम डोंट बैट एंड कैस डजंट बैट एज वेल। सही है, सो हसनैन नसीम कैस के साथ अगर आप कैस ने वैसे शाहीन को एक छक्का मारा आज। हाँ, बट यू डोंट काउंट देम एज अ बैट्समैन ना प्रॉब्ली, सो यू अब आज हाँ, के बाद उनको नजर आ जाएगा कैस कैन बैट, सो प्रॉब्ली दे विल प्ले एमल एंड या फिर कर्नल जाहिद, यू कुड सी देम, ऐसा हो सकता है। बट आई because थिंक Colonel एक Zahid did ऑप्शन really और well भी in है। the Dubai league, right? I mean, if you हाँ, must he's a was he's must a have he's a followed really it. good fast bowler, and they can Yeah. go for him. They should go for someone at least for a third fast bowler because एक ऑप्शन और है क्विटा ग्लैडिएटर्स के पास जो बैटिंग वाइज इनको थोड़ी सी सेफ्टी और देता है, because they see they have to कैलकुलेट के ओडिन स्मिथ की बैटिंग जो है वो उनको कितना कितना मार्जिन देती है कि उसकी बॉलिंग को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सही है, आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि यार एक मेरे पास प्लेयर है जो मुझे आखिर में आके छक्के दे मार सकता है, लेकिन उसका नुकसान मुझे क्या बॉलिंग में कितना पड़ रहा है कि मैं उसको बर्दाश्त करूं। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ फेयर कॉल, मतलब फायदा मुझे नजर नहीं आ रहा है ओडियन स्मिथ की बैटिंग का कि अगर उसकी बॉलिंग में इतनी बात पड़ी। सो आई थिंक दे कुड गो जैसे फॉर उमैद आसिफ एज वेल। उमैद एग्जैक्टली आसिफ जैसे कैन बैट लाइक 8वें 9वें नंबर पे आप उसको बैटिंग करा सकते हो, एंड ही इज अ वेरी डिसेंट बॉलर। So I think एक क्या उमैद इनके पास है, विल स्मीट है, एंड ऑन द पॉइंट ऑफ सरफराज बीइंग बैटिंग ऑन डिफरेंट नंबर्स इन 4 मैचेस, आई थिंक आई बिलीव दैट ओपनर्स के बाद है ना 3 से लेके 8 9 तक T20 में मेरा मानना ही है कि किसी भी बैट्समैन का कोई नंबर होना ही नहीं चाहिए। मतलब यू डोंट लाइक तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है, बिकॉज सिचुएशन वाइज चेंज होना चाहिए ना। आज की सिचुएशन प्रॉब्ली डिमांड करती थी, जो अगर मैं सरफराज मतलब वेयरिंग ए सरफराज हैट कि you need 200 runs and you are behind the 8 ball, so you send your hitters in। हाँ उसमें कुछ गड़बड़ उसमें नजर आई है, प्रॉब्ली सरफराज might have walked out or maybe could have walked out जब इफ्तिखार आया, because like again ना इफ्तिखार को राशिद के सामने किया, but looking at it because इफ्तिखार is your best, one of the best middle over hitters in their team as well, in Pakistan team as well, and Rashid was the only spinner that they had, so probably I mean the call was कि यार ये जाएगा, probably spin को शायद मार दे, pace को तो मार ही देगा। At that time it was like they need sixes of spinners and fast bowlers and everyone because they, and हसन की एक बात बहुत अच्छी थी कि उनको शुरू में फ्रंट लोड पे काम करना पड़ेगा कि शुरू में रन्स करके दें, एंड दे हैव प्लेयर्स फॉर दैट, लाइक दे हैव रॉय एंड लाइक अप टिल एटलीस्ट ऑन पेपर आपको नजर आता है कि यार
वो एक aggressive batsman है, but both of them are not giving them like first ball से या बिल्कुल ही शुरू से जो है वो फिर मार के नहीं दे रहे हैं. That's why नीचे भी थोड़ा प्रेशर आता है, अगले आने वाले को सेटल होने में टाइम लगता है. तो प्रॉब्ली अगर कहीं भी रॉय और कप्टिल का, एंड कप्टिल सेंचुरी जरूर मारी है पर ही स्टार्टिंग स्लो, आज भी उसने स्लो किया एंड देन ऑब्वियसली लॉस्ट हिज विकेट. तो अगर ऊपर से तेज I रन think आ जाते Roy हैं को तो one down भी नहीं खिलाना चाहिए. I think I हाँ know नहीं Bengal वो very अच्छा see Yeah, can I you be don't the have devil's advocate here? Can I you be the don't devil's have advocate? जी एक जी. पॉइंट मेरा और they don't have a place for Pangalzai right now. फिर आप मतलब यू हैव टू फिट हिम इन समवेयर ना. आज आपने ओपन भेजा कि उसकी नीचे कहीं जगह नहीं है, सो यू बैटेड हिम अप कि यहाँ कुछ रन कर ले तो रॉय कैन कम अप एट थर्ड एंड वहां से वो वही रोल प्ले करेगा जब ऊपर करेगा. दैट डजंट मेक सेंस. पर बंगल सही की जगह नहीं बन रही बिकॉज ही इज नॉट एज फ्लैम्बॉयंट एज साइम अयूब और समवन लाइक हारिस और मिर्जा ताहिर बेग. अच्छा यहाँ भी एक बात और ड्राफ्ट में आती है, गेट टू इट कि आप छोटी छोटी चीजें ना आपको बड़ा बड़ा नुकसान करा देती है. कि आप अगर क्वेटा की 8 रिटेंशन देखो ना तो उसमें उन्होंने नवीन को रिटेन किया था और नसीम को छोड़ दिया था. सो दे हैड दिस थॉट कि नसीम को ड्राफ्ट में पिक कर लेंगे, कोई और पिक हुआ किसी और ने पिक किया तो दे यूज द आरटीएम से वो दोबारा उठा लेंगे. मसला ये है कि इफ यू यूज आरटीएम यू कांट यूज वाइल्ड कार्ड. तो नसीम को छोड़ा उन्होंने एंड देन मुल्तान पिक नसीम अप, दे यूज्ड आरटीएम, नाउ दे कुडंट यूज वाइल्ड कार्ड ऑन साइम अयूब. अगर they had retained Naseem in the 8 players that they had to retain. Naseem is the golden player. उसका पॉइंट ही नहीं बनता था उसको रिटेन करने का. तो एंड नवीन अगर नसीम रिटेन कर रहे हो तो who are you leaving out in the retentions? नवीन नवीन और एनीवन, भाई इट्स नसीम शाह. मतलब यू लीव सरफराज आउट फॉर गॉड से किसी को भी बात करो बट इट्स नसीम शाह. नसीम शाह इज तो योर बेस्ट प्लेयर. इसका सही है, सो तो यू इसका डोंट यही लीव नसीम मतलब है शाह. ना, मतलब यू डोंट सी द एंड शोएब, इसका यही मतलब है कि ड्राफ्ट गलत हुआ है. बेसिकली ड्राफ्ट हाँ बहुत गलत हाँ हुआ है. हाँ, there have been problems and look see अगर आप 4 साल बुरा कर रहे हो ना तो there are a lot of things that are going wrong. There are things at the captain's end, there are things at the coach's end as well. ते कोच मतलब something has to give and एक एक गलती उन्होंने शायद अच्छा, 2-3 साल पहले भी की थी. I'm going through some of the comments that's coming up. वकास, एक बड़ा interesting question आया है. Is Hasnain becoming the proper Pakistan fast bowler, referring to the beautiful hair, of course? Of course, hair is like the most important part of a fast bowler's repertoire. भाई क्या हो गया? उसमें Pakistani बटन नहीं Pakistani किया हुआ है fast ना, bowlers उसमें repertoire. तो बटन भी शर्ट के थोड़े से खुले होने चाहिए. बटन, भाई देखो, तीन चीजें जो है ना, तीन चीजें फास्ट बॉलर बनाती हैं अपार्ट फ्रॉम बॉलिंग फास्ट, क्यों दैट्स अ प्रीरेक्विजिट, राइट. पहला है कि उसका कॉलर खुला हुआ होना चाहिए और बटन थोड़े खुले होने चाहिए. दूसरा है कि उसके बाल अच्छे होने चाहिए. दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज नेसेसरी एंड दिस नीड्स टू बी इंसर्टेड इन द डिस्कोर्स ऑफ पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग. और तीसरा, उसके पास चेन होनी चाहिए. तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर के. मजे की बात यह है कि माय फेवरेट T20 bowler for Pakistan doesn't have one of those things. It's Dilbar. मतलब दिलबर, I love दिलबर. T20 का मिडिल ओवर इन्फोर्सर है, वो गंजा है. प्लीज डू So नॉट, प्लीज डू नॉट क्या क्या हो गया फास्ट बॉलर का से? यार यार दिलबर ऐसे तुम ऐसे अब जाके बोलोगे पहले मुझे जो है बिलावल भट्टी बहुत पसंद था, तो क्या मतलब मैं ये भी अब टॉलरेट करूंगा? बिलावल भट्टी कभी पसंद नहीं आया मुझे, Acha, लेकिन दिलबर being on the दिलबर was a very topic, good there's player. another question. Guys, there's another question. What exactly is Hafiz's role in Quetta Gladiators lineup? Good one. Good Yes, question. I think Sohaib will take this. हाँ हाँ, Originally, ये I था want to भी take नहीं और this. अब ये playing 11 में है. हाँ, I want to take this question. अच्छा हफीज, when it was announced that हफीज को इन्होंने ले लिया है, so I had mixed feelings, but हफीज probably अब रिटायरमेंट से पहले का 1-1.5 साल जो हफीज का गुजरा है, that was the purple patch probably जो हमने उसके 20 साल में एक ही दफा देखा. So the good part is कि उसकी मेमोरी अच्छी थी, तो the memory was कि he hit space. सही है, he has started hitting pace and intent है एंड फर्स्ट बॉल से आके मारने वाला सीन हो गया है. सो दैट वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू कि इफ हफीज इज देयर तो ये तो वो रोल कि जहां अगर वो मिडिल ओवर में आता है मारने तो ही इज द गाय हु कैन टेक इट टू द ऑपोजिशन. एंड आज पहले मैच में 8वें पे भेजा, मुझे समझ नहीं आया. और आज चौथे पे भेजा, आई वाज ओके विद इट बिकॉज उस वक्त फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे.
तो मुझे हुआ कि यार दे वांट हिम टू टेक एडवांटेज ऑफ देम, एंड उसने हारिस को 2 छक्के मारने के बावजूद आई थिंक ही मेड प्रॉब्ली 25 और 21, तो कुछ Yeah, वो he slowed down. I अच्छा think मसले Quetta की बात is ये भी है। struggling to figure out their batting lineup. यार सोचो हफीज कितना बुरा नेट्स में खेल रहा होगा कि कोयटा ग्लैडिएटर उसे 8 पे भेज रही थी। मतलब क्या But the thing is, रिफ्लेक्टिव you, खत्म you हो गए। there is another Similar thing na, match. that Hafiz gives you a bowling option as well, but you're not using him there. And if you So does want a Iftikhar. finisher in your team, यार you have Iftikhar and a better finisher than Hafiz in Umar Akmal, and you're not using him as the finisher. Umar Akmal ने यार अभी मुझे नॉर्डर्न के लिए छठे नंबर में बड़ी अच्छी फिनिशिंग करी है। एक यूज हिम बात एट अ मुझे 6 समझ नहीं नंबर ना। आई। यार एक मुझे चीजें अभी आज जो है हफीज ने बॉलिंग ओपन की है राइट ताहिर के खिलाफ, एंड ताहिर ने उसको पहले छक्का मारा फिर 4 मारा, बट व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड इज इफ सरफराज इज लाइक लुकिंग एट के हफीज को मैंने बॉल दी है और ताहिर ओपन कर रहा है, देन गेट द बॉल बैक मैन, मतलब गिव इट टू समबडी एल्स। वो राइट ही बैटिंग कर रहा है। व्हाट लॉजिक वाज दैट डिसीजन, मुझे समझ नहीं आया कि ताहिर राइट हैंडेड बैट्समैन है, आपने हफीज को दिए। अच्छा how I saw it was कि हफीज obviously came for फखर जमान, सही है, एंड अगर नवाज भी फॉर एग्जांपल नवाज आ जाता तो the batsman could have changed hands, but अगर नहीं भी करते you get the single and you change your matchups ना, matchups लग जाते, कोई मसले की बात नहीं थी। अब ताहिर ने इसीलिए सिंगल नहीं लिया क्योंकि फखर के लिए ही आया था हफीज, तो अगर तो यार उसे नवाज भी तो लगा पता है तो ना क्या, शायद। हाँ हाँ ट्रू उसे ट्रू भी तो वो पता बात, है ना। आई स्टैंड बाय योर पॉइंट। पर एक चीज और भी है कि पिछले मैच से एक चीज और भी नजर आई है कि कोयटा हैव जस्ट 2 बॉलर्स, हसनैन एंड नसीम, एंड सरफराज एज अ कैप्टन हैज टू फिगर आउट कि इसको ये 12 ओवर और कहाँ से निकालने हैं, ये वाला ओवर मैं इसको कहाँ से डालूं। सो प्रॉब्ली दैट थॉट वाज कि लेट्स ओपन विद हफीज हु हैज बीन अ डिसेंट पावर प्ले स्पिनर, उसने हमेशा अच्छा ही किया है, स्पेशली लेफ्टीज के अगेंस्ट अच्छा किया है, तो लेट्स स्टार्ट विद हिम एंड देन वील प्रोसीड विद द फास्ट बॉलर्स। एंड मसला एक और चीज ये भी है कि यू हैव 2 फास्ट बॉलर्स, एंड जब पावर प्ले में बॉलिंग हो रही होती है देयर इज डिस्कशन कि यार हसनैन को नसीम को ओवर करना चाहिए, डेथ में भी हसनैन नसीम को करना चाहिए, एंड मिडिल फेज में भी यार जब विकेट चाहिए तो हसनैन नसीम को करना चाहिए। 8 ओवर आप कहाँ डिवाइड करोगे? सो गिविंग हफीज gave him that advantage कि हफीज तो ओपन गया, भले वो पिट गया, लेकिन हफीज बॉल द फर्स्ट ओवर, देन हसनैन, देन नसीब, देन हसनैन, तो मिडिल ओवर में आते आते ही स्टिल हैड नसीम एंड हसनैन के 5 ओवर बाकी थे, जहाँ नसीम के 3 ओवर बाकी थे। तो ये ब्रॉट हिम प्रॉब्ली अराउंड 9th और 10th ओवर के लिए 1 ओवर के लिए ले आया, फिर नसीम को आखिर में लेके आया। तो इफ हफीज वाला वो मूव वर्क कर जाता तो दैट वुड हैव बीन क्या जीनियस मूव था। आज नहीं किया तो वर्क, अच्छा एंड अच्छा शफकत, क्रेडिट टू मिर्जा ताहिर to make use of it. Brilliant batting. बहुत बहुत आला उसने, मतलब उसने गेम वहां पे बहुत जबरदस्त चलाई थी। अच्छा शफकत, आई विल कम बैक टू यू। मैं टेबल देख रहा था, लाहौर कलंदर्स इज सेकंड नाउ, दे प्लेड 3, दे वन 2, दे लॉस्ट 1। Yeah, सो डू yeah. यू सी देम कंटिन्यूइंग विद द सेम ट्रेंड गिवन के मतलब बॉलिंग रिसोर्सेज तो लाहौर के प्रोबेबली इस पूरे उसमें टूर्नामेंट में सबसे अच्छे हैं विद राशिद कमिंग इन। डू यू सी देम मेकिंग द फाइनल्स लाइक easily, yeah, there are chinks in the armor? What do you think? क्या Yeah, क्या yeah, या अच्छा, देखो सबसे जो अच्छी खबर है हमारी टीम के लिए वो ये है कि हम अपने अगले 4 मैचेस होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं। देयर कमिंग टू लाहौर, राइट। एक Yep. वो थोड़ा आपको होम एडवांटेज होगा, एंड दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दे विल बी प्लेइंग एट गद्दाफी आफ्टर हैविंग वन द पीएसएल। तो एक थोड़ा सा वो चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आई सी कि हमारा अगला मैच छोड़ के उससे अगला मैच अगेन क्वेटा के अगेंस्ट है लाहौर में। So Hmm. Qalandars will be at home, and I think they'll be well aware कि अब तक के जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं, एक मुल्तान में खेला है, 2 कराची में खेले हैं, उसमें Hmm. like what have they done? You know, one of the things is कि उनका मिडिल ऑर्डर आज चला है, तो उनके पास ये एडवांटेज था कि वो थोड़ी सी मार भी खा ले। मतलब आज क्वेटा का आज बेस्ट पावर प्ले था। क्वेटा ने जितने भी मैचेस खेले हैं आपका, आई थिंक 49 for 1 था उनका, और 49 for 1 से अगर आपका बंगल से ही आउट हुआ है तो मतलब रॉय और गप्टिल अगर वो वहां से स्टार्ट हो जाते तो दिस कुड हैव बीन लाइक इजीली दे वुड हैव चेस्ड इट, लेकिन वो नहीं कर सके, दैट्स द थिंग। तो कलंदर्स का मिडिल ऑर्डर जो रन्स करेगा या नीचे से आके अगर कोई पिंच हिट कर देगा, स्पेशली जैसे अब राशिद आ गया है, वीसा अगर कर दे ट्राई, इवन दो कि उसकी बैटिंग फॉर्म कोई अच्छी नहीं रही IL T20 में भी और इधर PSL में भी, तो आई थिंक कलंदर्स शुड लुक टुवर्ड्स
गिविंग फ्रीडम टू देयर मिडिल ऑर्डर, जैसे आज तरह से आज उन्होंने खेला है, बहुत अच्छी बात ये हो गई है कि दे हैव गॉट एन एग्जांपल टू फॉलो इन द कमिंग गेम्स, कि द वे यू पीपल बैटेड अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जस्ट गो आउट एंड डू दैट अगेन एंड गिव अस दिस टोटल। तो अच्छा, ये एक और चीज भी है, लाहौर ने दो मैचेस जो जीते हैं उसमें दे हैव सेट अप द टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड देन दे हैव डिफेंडेड दैट, राइट? Yeah, yeah, आज yeah. और वो चेस करने में उनको थोड़ा सा मसला हुआ है। अच्छा, अब चेस के लाहौर की बैटिंग की एक और बात भी है, आप देखें कि पिछले सीजन में भी और पहले मैच में भी हम देखें, मेजॉरिटी ऑफ द रन्स वर स्कोर्ड बाय फखर जमान। लाइक अगर फखर चलता है, मतलब टोटली इनको फखर पे रिलाय नहीं करना होगा। जैसे आज एक किस्म की लाहौर के लिए बहुत एडवांटेज था कि जितनी भी देर मिर्जा ताहिर भी एक विकेट पे रुका है, he scored at a fairly good strike rate around 200. That is the thing that Qalandars will have to keep in their mind, कि अगर हम फखर के ऊपर ऑनेस्ट रखते भी हैं कि यू हैव टू स्कोर द रन्स, तो उसके इर्द गिर्द जो लोग आ रहे हैं उसके साथ, उसका ओपनिंग पार्टनर, 1 डाउन 2 डाउन, वो लोग इस तरह के अगर बड़े कंट्रीब्यूशन नहीं भी करते, इस तरह के छोटे छोटे कंट्रीब्यूशंस करते रहें ताकि द स्कोर कार्ड कैन कीप ऑन टिकिंग। और बॉलिंग में तो कोई मसला नहीं है, all they need is runs on the board, right? And bowlers can do their job. Bowlers will So surely do their I'll job. ask you. I'll ask you this very quickly. Do you see them defending this title successfully in 2023? Yes or no? Yes, I can see them. I can see them. Okay, big words. Hassan bhai, Lahore Qalandars have benched Abdullah, and I know you're a big fan of Abdullah. He's probably, I was according kind to of you, the fan best. too. Yeah. On that point, huh? So I He need, should I be need the your next perspective. format there, yaar. Abdullah, I mean, it's a travesty कि someone like यार Kamran हमें ही दे Ghulam. दो, मैं यार मुझे हमें ही दे दो, हमारे पास प्लेयर नहीं है कराची में, तुम हमें ही दे दो यार अब्दुल्ला। या तुम्हें हैदर दे दिया, तुमने क्या कर लिया? अच्छा, यार we've हैदर आ talked गया, कौन Quetta ऐसे आ गया Gladiators आपके so पास? much. We यार haven't touched हद के हो वकास भाई कराची के गई। साथ है. I followed Lahore Qalandars very closely because of Abdullah Shafiq last season, and I think till before the playoffs, he was leading the runs. He was one of the top run getters in PSL, and the next season they drop him. Or I'm not too convinced about Kamran Ghulam at 1 down. I know I'm guessing इन्होंने KPL की performances देख के इसको शायद pick किया हो, because KPL में he did well, but the level of cricket being played in KPL and PSL, it's a different ball league. But having said that, I think Lahore Qalandars के जो 1 down, 2 down, 3 down जो आपके players हैं ना, they will be their downfall eventually, which is Kamran Ghulam, Shea Hope, Hussain Talat. They will drop the ball in terms of strike rate. Fakhar Zaman pe, they were always overly reliant. I think they have a good one in Mirza Beg. But let's see how they fare against. I mean, abhi so far bowling centric ho rahe hain, but because on that Karachi subject, they play Multan Sultans next. Yeah, So good luck to Karachi, because Multan and Rizwan seems to be in red hot form. Rizwan, by the way, I'm taking a prediction. I'm calling it now. At least till before the playoffs, he's going to top the run scoring charts easily. जिस तरह इजली का वो इजली कोई, हाँ वो करेगा, इस साल भी करेगा वो। यार Good कराची किंग्स, part. कराची किंग्स का ये सीन है कि हमारे इतने बुरे हालात हैं कि हम जब कंपेटिटिवली हारते हैं तो शुक्र अदा करते हैं। तो इसलिए मैं जो है कोई उम्मीद तो रखता ही नहीं हूँ, बस अब मुसल्ला खोल के 2 रकात नफिल पढ़ लेता हूँ, फिर अल्लाह मालिक के आगे क्या हो। तो वो जो मेरी टीम का तो गुस्सा सीन ही था, ऑफ है ना। कराची ने निकाल दिया था ना अपनी टीम से, जिसकी वजह से वो हार रहे थे, वो तो अब चला गया पेशावर हाँ, apparently. अब तो मैच विनर्स है यार यार, अब तो आपकी टीम में मैच विनर्स है। यार अब तुम लोग चाह रहे हो कि ये जो हम कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट ये बंद हो। हाँ, यार वो कहते थे दैट्स वो अ फैक्ट, नेगेटिव दैट्स अ मार्केटिंग फैक्ट। इज आल्सो मार्केटिंग, तो थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो मशहूरी आएगी Can we शहर talk में. about Amir, or is that too like we don't talk about him? Can we talk about Amir? I Yeah, we think can. I mean, we the can. thing is कि I don't understand his attitude, not because मतलब aggression वगैरह की वजह से नहीं कह रहा. Aggression show करे, कुछ भी करे, कोई मसला नहीं है किसी भी बॉलर के लिए. I'm okay with that. But the problem is, it should go with the performance ना. It should go with something to show that you have something to show कि यार मेरे पास ये quality है. Like right now, I remember a tweet I did today. Like you can count on fingers कि आप गिनना शुरू हो, बॉलर खत्म नहीं होते जो आप आमिर से ऊपर रेट करते हो.
लाइक अभी आपका जो टॉप, जो आपकी क्रीम है, उसमें शाहीन, हसनैन है, अपना नसीम है, हारिस है, एंड उसके बाद जाके फिर देन यू हैव दहानी है, वसीम है, यंगस्टर्स में भरे पड़े हैं। उसके बाद कहीं मतलब यू डोंट थिंक अबाउट हैविंग आमिर बैक बिकॉज यू डोंट नीड हिम नाउ। सो वो एटीट्यूड, या तो ये एटीट्यूड प्रॉब्ली उसी फ्रस्ट्रेशन का जो है वो रिजल्ट है, बिकॉज यू गो आउट, यू रिटायर एंड यार थिंकिंग दैट one पीपल thing माइट I'd यार like से कि to मुझे यार। point आमिर is, की एक आमिर की मुझे बड़ी अच्छी मजे की स्टोरी याद आई है अभी। साल पहले की बात है। आमिर ने अपने ट्विटर पे लगाया मॉन्टाज फॉर, पता नहीं उसने अपने जो विकेट्स कंपाइलेशन ऑफ विकेट्स पैकेज लगाया फ्रॉम लंकन प्रीमियर लीग, और उसमें टॉप 5 विकेट्स थी, और उसने टोटल लंकन प्रीमियर लीग में 6 विकेटें ली थी। हंस हंस ओ के शिट, मेरा आई दिमाग। रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। yeah, nee, अच्छा, एक but एक there's पॉइंट, one एक thing पॉइंट। that I would want to point out. Sorry, about Karachi. I हाँ, think श्योर Karachi श्योर। na, since we're on the subject, उनका अगला match है. They are extremely risk averse when it comes to playing T20 cricket, and ये आपको ना एक बड़ा अच्छा template नजर आ जाता है on how you back your new upcoming talent. Whenever Karachi picks a new guy, they don't tend to back them. हमारे पास मिडिल ऑर्डर में नेशनल टीम में सबको पता है मसला है बैटिंग का, ठीक है, एफटी कुछ हद तक वो सॉल्व कर रहा है, बट वन यंगस्टर हु इज फॉलोइंग द परफेक्ट टेम्पलेट फॉर बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर इज कासिम अकरम. वो 4 डे क्रिकेट में भी खेल रहा है, वो T20 भी खेल रहा है, लिस्ट ए भी खेल रहा है. पहला PSL वो आता है कराची किंग्स की तरफ से, पहला मैच खेलते हैं, आफ्टर द फर्स्ट मैच व्हाट हैपेंस टू हिम? वकास, He प्लीज is एक्सप्लेन. benched. यार ये this is not the first time that this is happening, right? I mean this needs to be better. I know it's franchise cricket and like जो है वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, आई गेट इट, लाइक पीसीबी फॉर प्रॉफिट है, बट आई गेट द जिस्ट ऑफ इट। बट यार कम ऑन, मतलब कासिम अकरम है आपके पास, आप एक मैच खेलता है, एक मैच में आप जो है नहीं परफॉर्म करता, आप उसे अगले मैच में बिठा देते हो। दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, हसन मोहसिन के साथ ये हुआ, उमर खान के साथ ये हुआ, राइट? हु एल्स? शफकत, गिव मी द लिस्ट। Hassan हसन Mohsin. मोहसिन, हसन मो I can, I can talk अच्छा, about that वन, for hours. Literally, जो Hassan Mohsin के साथ हुआ है. I mean, it would have been a brilliant start to his career अगर कराची उसको सही तरह से पुश करता, मैचेस देता. But कराची ने उसको बेंच पे बिठाए रखा 2 सीजन्स and he's lost. यार हसन मोहसिन है, बहुत लोग हैं यार, लाइक हसन अभी मैं मोहसिन है। 2 दिन पहले हाइलाइट्स देख रहा था 2019 के सीजन की। यार कराची की टीम में मनरो था, इफ्तिखार था, और मिलर था। आज जो नबी, बाकी टीमों में जाके नबी भी था, नबी था, नबी। जो बाकी टीमों में जाके अभी जितवा रहे हैं उनको सीजन, मुल्तान सुल्तान हाँ, की जो वो टीम अभी अभी। आई थिंक कल या परसों एहसन जवार ने यही ट्वीट किया था ना कि वो कराची किंग्स ने बहुत प्लेयर बनाए हैं। वो प्लेयर तब बनाता है जब वो कराची किंग्स छोड़ के जाते हैं। तो it was a huge हाँ list of players, उसमें इफ्ती भी हाँ था, उसमें हाँ, और भी बहुत बहुत प्लेयर। Martin बढ़िया है। Guptill, Martin अच्छा, Guptill. वन पॉइंट दैट I'd like to point out, वो ये है कि आप जब 6 PSL टीम है, उसमें आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम के लिए, वो ये है कि उसका कोर ग्रुप कितना स्ट्रांग है। सही है, जो टीम बेहतर परफॉर्म करती नजर आ रही है, जो या जो आपको बेहतर स्ट्रक्चर में नजर आ रही है, उसका कोर हमेशा स्ट्रांग होगा। 2 टीमें हैं जिनका जो आपको इस वक्त हिली हुई नजर आ रही है, वो एक क्वेटा है और एक कराची है। सही है, इन दोनों का आप कोर देखोगे, एक तो सरफराज है, प्रॉब्ली नवाज है, और उसके बाद आपको कोई कोर में प्लेयर नजर नहीं आता। एंड कराची में इमाद है, आमिर है, एंड प्रॉब्ली बाबर वाज देयर, नाउ इट्स मलिक। सो उनका कोर वीक है। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड में आते हो, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोर ही बहुत बड़ा है और कोर बहुत बहुत स्ट्रांग है। देयर तगड़ा इज है। आसिफ अली इन देयर, देयर इज शादाब इन देयर, देयर इज हसन अली, देयर इज फहीम अशरफ। ये कोर वो प्लेयर होते हैं जिनको अब तो फ्रेंचाइज जाने आजम भी नहीं खान भी देती। कोर में है। अब हाँ, तो आजम आजम खान खान भी भी आ कोर है। गया। एंड अच्छा, आप कोयटा ट्रेडिंग आजम खान वाज अ सरप्राइज बिकॉज़ वो स्पिन का मतलब वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली। उसका स्पिन हिटिंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अगेंस्ट उन्होंने इफ्तिखार को लिया था, सो दैट्स अ बैलेंस आउट। लेकिन आजम वाज अ काइंड ऑफ अ स्टील फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड। देन देयर इज फहीम विद देम, हसन अली, उनका कोर बहुत स्ट्रांग है। आप मुल्तान में आ जाओ, आप जितनी भी गालियां दे लो, या गालियां नहीं, बुरा भला कह लो शान मसूद को, बट ही इज पार्ट ऑफ देयर कोर। हैदर हजार दफा कह चुका है कि ही इज इम्पोर्टेंट टू टू देयर प्लान्स। सही है, उसका फील्ड पे होना किसी भी कैप्टन के लिए इंपॉर्टेंट है, because उसका दिमाग बकौल हैदर अजहर के एक कंप्यूटर है, जिसके लिए डेटा एनालाइज करना और उसको परसीव करना बड़ा आसान है। तो कैप्टन के लिए एक शान मसूद फील्ड पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स व्हाई शान मसूद उनके लिए रहेगा। और जब उसको कैप्टनसी से हटाया,
उसके बावजूद वो उसको हमेशा स्क्वाड में रखते हैं, एंड अब तो टीम में भी रखते हैं, बिकॉज ही इज इम्पोर्टेंट टू देयर प्लान्स। तो वही मुल्तान ना, के आईपीएल में कोर में भी आईपीएल में आते हैं। जैसे हाँ धोनी वाला आईपीएल का, वो चेन्नई का जो धोनी के साथ सीन था कि हाँ हाँ, जहां भी आपको लगेगा कि किसी टीम का कोर स्ट्रांग है, फॉर एग्जांपल पेशावर जल्मी, लाइक इनिशियल ईयर्स का ले लो, तो देयर कोर वाज वेरी स्ट्रांग, लाइक दे हैड अफरीदी इन देयर, कामरान अकमल वाज देयर, हफीज वाज देयर, वहाब रियाज एंड हसन अली केम इन, जुनैद भी था। शुरू में तो ऐसा लगा सारे फास्ट बॉलर जल्मी नहीं उठा ली, क्योंकि हमारे पास लाइक फर्स्ट और सेकंड सीजन में इतनी क्वालिटी प्लेयर्स थे भी नहीं, वो तो बाद में आए। सो एंड अगेन लाहौर में आ जाओ तो देव शाहीन, हारिस, फखर, एंड ये कोर प्लेयर नहीं जाने देते। सो आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स एंड कराची किंग्स का तो कोर बना हुआ है, कोयटा ग्लैडिएटर्स probably would have to work on making a stronger core first, the core that covers a lot of areas, and then move on from there. राइट। अच्छा गाइस, कमेंट्स ले लेते हैं जो लोगों ने किए हैं। ओह अल्लाह, इतने कमेंट जिंदगी में नहीं देखे मैंने। I don't want. Rizal Hassan says, I don't know why pick Sarfaraz Ahmed. Sarfaraz Ahmed is not a T20 player, only for Karachi media support. That's why he's playing. So, Let's like, take that comment now. Ajay, the thing is with Sarfraz, yes, now there is a point that he should be rested, or he should be dropped, or he should be at least stripped off from captaincy. But सरफराज की वैल्यू देखो, हर हर टीम की और हर फ्रेंचाइज या उसकी ना एक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्क इन अ डिफरेंट वे, इन अ सर्टेन वे, सही है, जहाँ वो अपने क्लब्स एंड उसके देखे हुए प्लेयर्स को ऊपर लाते हैं, एंड उनकी प्लेयर बिल्डअप्स में सरफराज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यू गो टू the players that have come from Karachi or played under Sarfaraz in clubs or in domestic under Sindh and even in Pakistan, शादाब आज भी उसको कप्तान बोलते हैं। There is a huge role that Sarfaraz plays in building up of players that Quetta Gladiators, you know, जो उनके थ्रू आते हैं। यू टॉक टू दोस्त, ये टीवी पे या ट्विटर पे फ्रेंड्स वगैरह right, देखना कि जी सरफराज ने Yeah, बाउंसर just right. पकड़े तो वो recently, गुस्सा हो गया just था, इट्स नॉट recently. ट्रू। सो सरफराज इज इम्पोर्टेंट टू देयर प्लान्स, कोयटा ग्लैडिएटर्स फैन प्लान्स, एंड दैट्स व्हाई ही इज देयर। एंड अभी वो रिटायर होने के बाद अब उसको मेंटोर के रोल में इनके ड्रेसिंग रूम में देखोगे। अच्छा, वेरी क्विकली आई गो थ्रू कमेंट्स। वन वर्ड जो है, आप लोग इस पे अपनी वो जो आपके व्यूज है वो दे दें। ब्रिंग बैक साइम अयूब इन क्यूजी गाइस। No, I आई थिंक think आई it's not कवर्ड he's that a दैट simple. पॉइंट। blessing. It's a blessing in disguise कि वो Peshawar में है and he's playing with the likes of Mohammad Haris and हाँ Yeah, हाँ and हाँ, he's getting ओके। to आई थिंक bat. आई He's डिड getting to. कवर दैट पॉइंट ना, आई डिड कवर दैट पॉइंट कि हाँ नसीब हाँ, से, वो क्योंकि तो उन्होंने आरटीएम किया तो साइम अयूब को वाइल्ड कार्ड पे नहीं ले पाए थे, सो ही इज okay. वेरी अनलकी। Stumps down. Morale to writes time for a Chacha fact, even though two is not his day. Okay. Jason Zakaria is writing Jason Roy Martin Guptill की opening slow. Yeah, true. I believe that's I think okay. if they play Will Smeed, so that could help them। मेरे हिसाब से विल स्मीड जो है वो पावर प्ले इन्फोर्सर है, आई थिंक वो काम आएगा उनके। Okay. Saad Zahid writes, what exactly is Hafiz's role in QG lineup? Exactly, that's a very good question. I think हफीज की जगह पे अब तो इनको चाहिए कि उमैद आसिफ को लेके आ जाएं। हफीज से आपने अभी तक हर मैच में एक या दो ओवर्स करवाए हैं। आज भी एक ओवर दे के आपने उसको हटा लिया, और बैटिंग में भी आप उसको अप एंड डाउन कर रहे हो। अदर से एक मैच में ड्रॉप भी कर दिया था। तो जहां पे आपका ऑडियंस में स्ट्रगल कर रहा है, तो आप उमैद आसिफ को ला के उसे 4 ओवर्स भी करवा सकते हो। और लाइक वो 37-38 है, ही नोज हिज ट्रेड, ही नोज द थिंग। और उसने परफॉर्म किया है, जालमी के लिए भी किया है, कराची किंग्स के लिए भी किया है। सीजनड कैंपेनर्स आपके बेंच पे बैठे हैं, आप स्मिथ को बाहर बिठा के बैठे हो, और एंड यू आर कंफ्यूज अबाउट योर ओन रोल इन द टीम एज वेल। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक इनका एक मैच कराची में, उसके बाद ये लोग लाहौर आ रहे हैं और फिर पिंडी जा रहे हैं, क्वेटा। तो इनको बहुत क्रिस्टल क्लियर होना होगा, क्योंकि आप 4 में से 3 मैचेस तो हार चुके हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्रिस्टल क्लियर। और आपके जो अब आपने जो हारना था वो तो आप हार गए हो। आप ले आओ फिर उमैद आसिफ को, विल स्मिथ को, ट्राई आउट तो करो ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ को। अच्छा साद जाहिद लिख रहे हैं कोयटा को रूसो की बददुआ लगी है। हाँ, अच्छा ये Okay. पॉइंट रह गया था, ये पॉइंट रह गया था रोसो वाला, ये इन्होंने भंड मारा था 2019 में, आई थिंक, जब ये सरफराज को कैप्टनसी से हटाया था, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट दे रिटेन्ड हिम इन प्लैटिनम एंड लेट रोसो गो, दैट वाज मैडनेस। तो वो
that comes अच्छा, into फरजाद फरजाद खान जो हैं उनका उनका कमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है. डू यू गाइस एग्री क्वेटा नीड्स अ रीबूट? Yes, they do need. ओके, कोयटा की टीम में कोई प्लानिंग चलती है या बस ड्राफ्ट वाइब्स पर चलती है? आई थिंक यार ये वाइब से मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक लगा. एक दफा मुझे अभी ये इस वाले ड्राफ्ट से पहले वाले जो ड्राफ्ट होते हैं जिसमें उन्होंने क्रिस गेल को लिया था. आई जस्ट वांट टू ऐड दिस. और मोइन खान से स्ट्रेट अप किसी ने पूछा कि क्रिस गेल को लेने का क्या जो है वो क्या कहते हैं वो लॉजिक है. तो उसने बोला कि क्योंकि वो अपना करियर एंड कर रहे हैं तो शायद हमने सोचा कि वो अच्छे नोट पे खत्म करना चाहें तो इसलिए हमने उनको ले लिया. मैं सोच रहा था कि क्या बोल रहे हैं भाई. यार खैर क्या बोलूं Interesting. मतलब. माइक माइक गाइस माइक. अच्छा, लास्ट कमेंट कोई ये वाला हो गया. आई थिंक सारे कमेंट हो गए तो आई गेस या कमेंट्स आर डन. अच्छा गाइस, तो प्रिडिक्शंस आने वाले दिनों के लिए. कल मुल्तान और कराची का मैच है. मैं तो नहीं दे सकता इसमें क्योंकि मेरा तो बायस्ड ओपिनियन होगा. तो लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक? यार वैसे आई थिंक द टॉस इज स्टार्टिंग टू प्ले अ बिट ऑफ अ फैक्टर. ये शुरू के मैचेस में नहीं था. शुरू के मैचेस में दे वर रियली क्लोजली फॉट. आई मीन 1 रन से पहला मैच पहली टीम जीती थी और 2 रन से दूसरी टीम जीती थी. बट currently it seems like the template is to bat first. We thought it might be the other way around initially. But having said that, I think Multan Sultan is topping the charts and they seem to be the team to beat. And Karachi isn't. तो मेरा ये ख्याल है कि I'm not even gonna get offended at this. Like, this is the truth. I mean, I'm self-aware enough to understand this. But I mean, if you get Rizwan early, because Rizwan is वो ना अब उसका strike rate power play में काफी improve हुआ है. I think nobody has addressed that. There's a lot of naysayers when it comes to Rizwan and Babar recently. I think short-term memory है काफी fans की because they do have amazing numbers while opening as well. Rizwan जो है वो I mean उसको जल्दी कौन आउट करेगा? आमिर question to you. आमिर तो खेल ही नहीं रहा. आमिर तो is out of आमिर तो नहीं condition. खेला ना. उसको हाँ. उसको सेलिब्रेशन करने के बाद इंजरी हो गई थी तो. Yeah. And one more thing on Karachi Ahmed. Kings have a chance. Fourth over कराची of किंग्स have a chance, yeah. the innings में वो cutters मार रहा था, so he was back at it. So I think it might be a blessing in disguise for Karachi. अच्छा गुड. यार एक अकाउंट ने यार एक अभी रिसेंटली अभी आमिर की जब पहला या दूसरा गेम था तो उसपे आमिर ने बॉल कराई और 140 शायद उसने टच कर ली. तो किसी अकाउंट ने किसी आमिर के हिमायती ने लिख दिया 140 प्लस और वो जो आग की इमोजी होती है ना वो लगाना शुरू कर दिया. कहीं यार ये देखो 140 पे आग लगा. गुड पार्ट अबाउट तो कराची किंग्स इज आई लाइक इज कि आकिफ जावेद आ गया. ही इज अ गुड बॉलर. मुझे अच्छा लगता है. ही इज अ वेरी गुड बॉलर आकिफ जावेद. आई थिंक रिजवान को अगर कोई आउट कर सकता है तो प्रोबब्ली आकिफ जावेद इज वन ऑफ देम. Yeah. Yeah. यार आकिफ से ना वो जुनैद खान वाली वाइब्स आती हैं मुझे. जो मतलब वर्क हॉर्स, वेरी गुड लाइन एंड लेंथ बॉलर, बट नॉट somebody who. Yeah. Oh, I was a I huge think fan. I was a huge fan. रिजवान we didn't रिजवान have बाबर को anybody to support Junaid Khan during his peak. He was doing it true. alone. At fast हाँ. ball. Junaid Khan of 2012, 13, 14 was like he was Magic. fire. He was doing a lot of work for us. Yeah. And अच्छा Shabir, your prediction? I think it's a bit harsh on Karachi Kings, but I would say Karachi are going to crumble tomorrow. यार तुम लोग ना ये सब मिली भगत है तुम लोगों की. शोएब तुम ही बता दो यार. तुम इधर आ जाओ थोड़ा. यार मतलब दिमाग तो ऑब्वियसली ये कहता है कि मुल्तान शुड विन इट. बट आई थिंक के हैव डिसेंट प्लेयर्स इन दिस स्क्वाड. So if like players like Wade or Heather have a good day, like Yeah. मतलब कुछ भी अच्छा. एमएस की एक जो ग्लेयरिंग वीकनेस एक नजर आ रही है वो ये है कि उनकी टेल बहुत लंबी है. पर मसला ये है कि आप उस टेल तक पहुंचोगे कैसे, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ फायर. अच्छा उस फायर पावर में देयर इज मिलर एंड रोसो. रिजवान और शान के बाद बात कर रहा हूँ मिडिल ऑर्डर की. देयर इज मिलर एंड रोसो. उसके बाद देयर इज पोलार्ड इजंट द सेम पोलार्ड दैट ही यूज्ड टू बी. सो अगर आप प्रॉब्ली थोड़ा उस
कासिल को थोड़ा अंदर घुस जाते हो ना, इफ यू गेट लाइक 3 विकेट्स इन 6 or 7 overs, देन यू हैव अ चांस कि आप मुल्तान को पकड़ सकते हो. सो आई थिंक एक वीकनेस ये है कि अगर मुल्तान मुल्तान के खिलाफ आपको विकेटें लेनी है, अगर आपने विकेटें गिरानी शुरू कर दी, एंड दैट्स व्हाई दे प्ले शान एज वेल. एक और पॉइंट, क्योंकि उनकी टेल बहुत लंबी है. सो शान एंड रिजवान आर देयर. हालांकि रिजवान, एज हसान सेड, के रिजवान ने स्ट्राइक रेट अपना इंप्रूव किया, विच इज अ ब्रिलियंट थिंग फॉर रिजवान एंड फॉर पाकिस्तान एज वेल. आई थिंक रिजवान और बाबर की जो क्वालिटी है, उसमें हम लोगों का ऑब्वियसली क्रिटिक, मतलब वी लव बोथ ऑफ देम, सही है. पर जो भी बात है वो यही होती है कि प्रॉब्ली दे शुड प्रॉब्ली इम्प्रूव देयर स्ट्राइक रेट अ बिट. बस 200 चेस करते हुए जितनी दफा उन्होंने खेला है, उसमें हमें यही नजर आता है कि दे हैव द कैपेसिटी टू डू इट. तो रिजवान वो कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग. एंड वो थोड़ा सा गेम को डीप इसलिए लेके जाते हैं बिकॉज दे हैव 5 अटैकिंग ऑप्शंस इन द मिडिल ऑर्डर. उस वहां तक पहुंचने के लिए उनको गेम थोड़ा डीप लेके जाने के बाद उनको चांस दें, इसलिए वो थोड़ा डीप लेके जाने वाला खेलते हैं, क्योंकि बैटिंग डेप्थ नहीं है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास है. सो इस यार तरह मुझे खेलते जो हैं. डर है ना, यार I think okay, so Hassan bhai saying Multan, Shafqat is saying Multan, Shoaib bhai is also, मतलब उन्होंने शुगर कोट करके मुल्तान ही बोल दिया है. तो जो है आई थिंक प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो है केके की बॉलिंग मुल्तान कैसे खेलेगी. द प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन मुल्तान कम्स ऑन टू बॉल, और एहसानुल्लाह जब अपने 4 ओवर वो जो 150 की रॉकेट फेंकता है, वो कौन खेलेगा केके की बैटिंग में, क्योंकि हैदर तो मैं अब कुछ बोल नहीं सकता, तो एस- इसलिए ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे. एहसानुल्लाह की बॉल प्रॉब्ली मुझे जो देखने से लग रहा है ना, वो उसमें पेस है, लेकिन वो बैट्समैन को आई थिंक रियलाइज होने से ज्यादा तेज घुस रही है. आई थिंक उसका बॉल स्किड हो रहा है, उसके स्लिप होकर निकल रहा है, जिस वजह से जो है वो उसको पिक करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. यार तो वो आई थिंक बॉडी लाइन करा रहा होता है, वो बॉडी लाइन करा रहा होता है मुसलसल. There's something awkwardness है कुछ कि he seems to be faster than the speed gun shows. You know हाँ what, ट्रू. back हाँ Yeah, back exactly, in exactly. back in the day, this is exactly, for people who were born after like 2001, there was a very good great batsman called Brian Lara जो 90s में बहुत रन बनाता था, right? तो हम लोग एंशियंट हो गए, हम उस जमाने के हैं. तो उसने पाकिस्तानी एक बॉलर था मोहम्मद जाहिद के नाम से, एंड ही वाज अ वेरी वेरी, जिसे कहते हैं, ही वाज ऑलमोस्ट एज फास्ट एज शोएब अख्तर, लेकिन उसके स्ट्रेच फ्रैक्चर हो गए तो वो नहीं खेल सका. तो शुएब जब ब्रायन लारा ने, शुएब says that Zahid was faster than him. अब कह रहा है ना, उस वक्त नहीं कहता था वो. तो जो है, जो जब ब्रायन लारा ने खेली थी उसकी बॉलिंग जाहिर की, तो ही सेड कि दैट ही वाज द क्विकेस्ट pacer that he's ever faced in his life. And at that time, until that point, he had faced like peak Wasim, peak Waqar. तो जाहिद Peak का भी peak जो तो जाहिद peak का भी यही, अख्तर भी खेला है वो peak, मतलब he's faced a lot he's of played everything. He's played all the 90s के cook in their peaks. तो Yeah. उस वक्त उसने बोला था कि he comes across as the quickest that I've played. तो जाहिद का भी यही था कि I think जिस तरह वो एक्शन उसका इस तरह का था कि जब वो बॉल मारता था पिच पर, तो इट यूज टू लाइक, जैसे अभी शोएब ने बोला कि स्किड फ्रॉम द सरफेस, एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी पोर्टेंट फॉर अ फास्ट बॉलर. अगर उसके पास वो एबिलिटी है तो फिर ही बिकम्स अ कंप्लीटली डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना, प्रोस्पेक्ट फॉर फॉर हिज टीम. तो अच्छा गाइस, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तो आई थिंक इसको यहीं पे कर लेते हैं, डेली का है अब तो ये. तो Yeah. अब प्रिडिक्शंस I'll आ end गई हैं. I'll end on one point about us being हम्म. getting. मैं कहीं पढ़ रहा था कि people born in 1990, I was born in 1990, are more closer to 1960 than to 2023. So सुन के जो है ना वो दिमाग घूम गया था. So we're really getting old now. या वी आर ब्रो. तो तो जो है, और अभी हम लोग ये पाकिस्तान, अभी तो ये पीएसएल आ गई है तो फ्रेंचाइज क्रिकेट हो गई है, लेकिन हमने पाकिस्तान क्रिकेट के हार्ट ब्रेक उस जमाने के देखे हैं, तो वो तो भाई अल्लाह किसी को ना ऐसी चीज से गुजारे. हाँ, सईद भाई की ग्रिप चेंज आज भी नहीं भूली हमें 99 की. यार नहीं याद दिलाओ, प्लीज नहीं याद दिलाओ जी. So thank you very much for joining us, guys. It was a lot of fun doing this. We'll hopefully be doing this almost every, not every day, but like after every game, every PSL game. So timings यही रहेंगी. These will be our participants, probably 1 or 2 additions to this panel as well.
So hopefully we'll catch you guys in the next episode. Thank you so much, Shoaib, Hassan, Sahfqat, for joining, and we'll Thank you. get Thank you back for with all our audience and all our participants tomorrow. Thank All you, right, guys. see you guys. Thank you. Allah Hafiz. Bye. Allah having. Hafiz. Thank you.